Hello everyone, welcome to Maneuver and here we will see the fourth week of December month से MCQ question from the current affairs. As I told you कि जो हमने last week पूरा cover किया है current affairs से daily basis पे द हिंदू न्यूज़पेपर से उसी से रिलेट करके यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मंथ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस आपके एग्जाम्स के लिए. ओके गाइस, इफ यू आर टारगेटिंग द टॉप IHM कॉलेजेस एंड टारगेट द NCHM JEE एंड ECHAT IHM Aurangabad, so here Manuel started the batch for online and classroom preparations where you will get the live classes, book, shortcut, doubt classes and recorded video, topic wise test, mock test, WhatsApp group, 10,000 plus question and mentor will guide you how to appear the exams and how to prepare each and everything. So for the classroom coaching, if you are Mumbai based, so here you can call for the Dada Center, Borivali Center and Vasai Center, and for online 8828581454, and you can visit on our website www.maneuveredu.com/hotel management. Which of the following district of Odisha CM inaugurated the state longest bridge T Setu over the Mahanadi? Very important question as a state point of view, river point of view and government project point of view guys. So it's in Cuttack, Jagdishpura, Kendarpara and Jaipur. कहाँ पे यहाँ पे इन्होंने इनैगुरेट किया है CM of Odisha. So here you can see CM नवीन पटनायक ने इनैगुरेट किया है. First try to give the answer from your end. पहले आप दे लो फिर उसके बाद here I will show you the answer and इस वे में प्रैक्टिस करो कि कितने आपके आंसर्स राइट हुए हैं. So right answer is a Cuttack. Okay, so it is inaugurated by the Naveen Patnaik. Name of the project is T Setu and this project is on Mahanadi river and its project cost is 111 crore. So these all are the things is important for your exam point of view. This is the 4 kilometer long bridge hai, okay, and it will connect the Gopinath and Badmana Mindeswar in Baki Singhnath pit in Cuttack will cut the distance between the Badamba and Baki Bideswar by the 45 किलोमीटर. तो इतना बेनिफिट होगा इन दोनों सिटी को, 45 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस है वो रिड्यूस होगा. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, स्टेट एंड रिवर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज A Sigma in a house messaging app is launched by which of the following force of the India? So is it a Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force or Indian Coast Guard? So what is the name of the Army force which launched the A Sigma application? Because you know कि जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं चाहे व्हाट्सअप हो या फिर एप्लीकेशन हो ये आर्मी यूज नहीं करती बिकॉज देयर इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल. सो आर्मी का अपना खुद का नेटवर्क होता है कम्युनिकेशंस के लिए. तो यहाँ पे इन्होंने मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है. सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट एज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एंड आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो राइट आंसर इज अ इंडियन आर्मी ने ये मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है. And here see the some important information. So Indian Army has launched the contemporary messaging application named ASIGMA, which means Army Secure Indigenous Messaging Application. So full form से relate करके भी sometime questions आ सकता है and some details is given. You can pause the video and read. बहुत ज़्यादा important नहीं है, सब सिर्फ extra informations के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है. Okay, now move to the next question. Who of the following can declare the application of APSPA in disturbed area? Very important question because you know नागालैंड का जो प्रॉब्लम चल रहा है APSPA को लेकर के डेली करंट अफेयर्स में कवर होता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पॉलिटी सेक्शन से फॉर्म हो सकता है वो मैंने यहाँ पे लिया है. तो जो डिस्टर्ब एरिया होता है जिसको कौन डिक्लेयर कर सकता है कि वहाँ पे दिस इज द डिस्टर्ब एरिया, अभी उस एरिया को आर्मी टेक ओवर करेगी. वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो होगा वो मोस्टली आर्मी के पास होगा और स्पेशल पावर होगा जो अंडर द APSPA एक्ट होता है, राइट. तो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. सो कौन डिक्लेयर करता है डिस्टर्ब एरिया कि ये डिस्टर्ब एरिया है और यहाँ पे अभी आर्मी स्पेशल एक्ट इंपोज होना चाहिए. ओके गाइज, तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो 2 and 3 स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता है. World largest telescope James Webb Space launched by which of the following space agency? So is it ISRO, NASA, JAX and Roscosmos? Okay, so these all are the space agencies, very important. ISRO from the India, NASA from the US and JAXA from the Japan and Roscosmos from the Russia. So ये भी important है कौन सा स्पेस एजेंसी कहाँ से बिलोंग करता है. So right answer is a NASA and NASA here you can see the 10 billion telescope James Webb Space Technology designed to capture the first glimpse मतलब होता है झलक, एक झलक of the universe just shortly after a big bang is the targeted for the blast off from the European Space Agency Kourou, French Guiana. Okay, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे. तो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस टेलीस्कोप इज अ जेम्स वेब स्पेस.
Okay, now see the next question. Name the vaccine that jointly developed by the German company BioNTech and the US pharma giant Pfizer for the COVID-19. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन का चल रहा है एंड इस तरह से वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन से रिलेट करके हाईली पॉसिबल है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने को. तो BNT162 Piovac, both A and B and neither A nor B. So what is the name of the vaccine? So right answer is the BNT162. Okay, यहाँ पे कुछ वैक्सीन के नाम भी है जो कि इंपॉर्टेंट है. BNT162 jointly developed by the German company BioNTech and US pharma again Pfizer. So इनका नाम रिमेंबर्स रखो क्योंकि वैक्सीन एंड किसने डेवलप किया इससे रिलेट करके प्रीवियस एग्जांपल में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं. कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन से रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लो. कोविशील्ड इट इज डेवलप्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. इट्स मींस मैन्युफैक्चर बाय एंड कोलैबोरेशन विद द स्वीडिश ब्रिटिश ड्रग्स मेकर एस्ट्राजेनेका. ओके, तो ये दोनों कंपनी का नाम रखो. बेसिकली इंडिया से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है. सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये बहुत अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था. एंड कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक हैदराबाद कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द वायरोलॉजी. ओके, सो पुणे बेस है. तो यहाँ पे इन दोनों का नाम याद रखो. भारत बायोटेक इज अ मोर इंपॉर्टेंट फॉर द कोवैक्सीन एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इट्स फॉर द कोविशील्ड. ओके, सो ये दोनों चीजें कनेक्ट करके रिमेंबर्स रखो. हो सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में भी इससे रिलेट करके क्वेश्चंस फ्रेम हो जाए. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. Under which of the following mission INS Kesari deliver 500 ton of food at port of Maputo, Mozambique? So very important related to the इंडियन नेवी से जो इनका प्रोजेक्ट है एंड INS केसरी से रिलेट करके. तो मिशन सागर, मिशन मैत्री, मिशन विजय एंड मिशन स्पंदन. तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द इंडियन नेवी एंड पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. सो राइट आंसर इज अ मिशन सागर एंड हियर यू कैन सी इंडिया इज हियर एंड Mozambique is here. So India hand over the food and defense equipment to the Mozambique and see the some other important information. So Mission Sagar was COVID-19 relief mission launched by the government of India May 2020 as a part of its effort to provide the essential aid to Indian Ocean country. Okay, what is the full form of the Sagar? Here you can see security and growth for all in the region initiative. Okay, so this full form is also important. Sometime the question may be framed like that. What is the G stand for Mission Sagar? Okay, so growth इस वे में भी आपको रिमेंबर्स रखना है. ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में मैंने देखे फ्रेम होते. नाउ सी द नेक्स्ट वन. Which of the following country added as a fourth new member of the BRICS? Brazil, Russia, India, China and South Africa New Development Bank. So यहाँ पे BRICS नेशन ने यहाँ पे जो ये बैंक फॉर्म किया था, इट्स फॉर्म इन 2000 आई थिंक सर 2014 या 2014 15 जुलाई 2014 को ये फॉर्म किया था. एंड ब्रिक्स को कभी फॉर्म किया था? ब्रिक्स वाज फॉर्म 2006. ओके, ये 5 नेशंस ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन या आप बोल सकते हैं नेशन ग्रुप को फॉर्म किया था. ओके, एंड दिस डेवलपमेंट बैंक वाज फॉर्म 15 जुलाई 2014. ओके, so which one is the fourth new member of the BRICS development bank? So right answer is Egypt. Just remember, and Egypt added as a fourth new member of the BRICS new development bank. Bangladesh, UAE and Uruguay joined the BRICS new development bank in September 2021. Okay guys, so remembers रखो. and its headquarter, इसका headquarter कहाँ पे? संघाई. संघाई इज द हेडक्वार्टर. ओके, तो इतने कुछ फैक्ट्स जो है जो मैंने फॉर्मेशन ईयर बताया एंड हेडक्वार्टर, ये इतना रिमेंबर्स रखो. एंड विच वन इज द लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक. दैट्स इट. इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स फील्ड के जीके पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. Who won the Sahitya Akademi Award 2021 in English for her novel Things to Leave Behind? Very important. It is the most important category में रख सकते हो. Highly expected हो सकता है एग्जाम्स में, मोस्टली फ्रेम होगा. ओके, सो अथर निमिता गोखले, अथर बेनी जोसेफ, अथर प्रिया मानेक, none of the above. So who is the writer? This question is important from the award point of view. अवार्ड सेक्शन से भी पूछा जा सकता है एंड बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है. दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. तो राइट आंसर इज अथर निमिता गोखले and see here some important information. So established in 1954 is a साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर्म. जब इसको फॉर्म किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था तो 1954. ये रिमेंबर्स रखो, स्टैटिक जीके से इंपॉर्टेंट है. एनुअली 24 अवार्ड, एनुअली लिटरेसी अवार्ड इन द लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिया जाता है. द साहित्य अकादमी अवार्ड इज द सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड हॉनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फर्स्ट वन कौन सा है? ज्ञानपीठ.
Okay, and remember the name of the writer Nimita Gokhale won the Sahitya Akademi Award 2021 English for the novel Things to Leave Behind. बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना, हाईली एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स के लिए. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस अवार्ड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state is the first state in India to observe Sahibzada Divas? So very important from the important day point of view, as well as this is the first state, so that's why it's important. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Assam and Nagaland. So कौन से state ने start किया है to observe the Sahibzada Divas? That will be observed on 27 December every year. Okay, तो 27 दिसंबर को ऑब्जर्व होगा साहिबजादा दिवस. एंड व्हाई इट्स सेलिब्रेट कमेमोरेट विल शो यू. ओके, फर्स्ट सी द व्हाट इज द नेम ऑफ द state. So right answer is Uttar Pradesh, and this is a remembrance of the martyrdom of the four son of Sahibzada of Guru Gobind Singh. So Guru Gobind Singh के जो 4 बेटे थे उनको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए एक मुगल एम्परर ने प्रेस किया था. उसके बाद उनको उसने डेथ सेंटेंस दे दिया था. सो उसी इनके कमेमोरेशंस में ये डे ऑब्जर्व होगा. और यूपी के जो बोलते हैं ना कि सिलेबस में इनसे रिलेटेड टॉपिक भी इंक्लूड किया जाएगा. सो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कौन से डे को ऑब्जर्व होगा एंड कौन से स्टेट ने इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है. दैट्स इट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was Edward O. Wilson, who has been in the news recently? So basically question is asking he is related to which field? So biologist, cosmonaut, cricketers and dancer. So this question is basically obituary section. So this person is a die. So that's why this is the part of the news. So he is related to which field? Important है obituary section से. So right answer is a biologist. And Edward O. Wilson, who was known as he was known as Ant-Man, and recently he died at the age of 92. That's why it's important. And here is a very important, his book name is Sociobiology, the New Synthesis, released in 1975. So important part है books and writer point of view से and obituary section point of view से. Okay, so just remember it. Now see the next one. FCRA administered by the Ministry of Home Affairs stand for. So because FCRA last 15 days से कंटिन्यू न्यूज का पार्ट रहा है, बिकॉज जो NGOs होते हैं फॉरेन फंड रिसीव करते हैं, उनके रेगुलेशंस के प्रॉब्लम की वजह से उनका जो ऑडिट करना था, उनका लाइसेंस रिन्यूअल करना था, उसके लिए गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड डिफाइन किया था 25 दिसंबर, फिर 31 दिसंबर, एंड उसी को लेकर के कंटिन्यू न्यूज में चल रहा है. तो दैट्स वाई ये एक फुल फॉर्म से रिलेट करके क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो व्हाट इज द स्टैंड फॉर FCRA? सो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन कार्टेल रिस्ट्रिक्शन एक्ट. रेगुलेशन एक्ट जो फॉरेन से फंडिंग आती है जो NGO के, उसके रेगुलेशंस के लिए ये एक्ट बनाया गया है. ओके, सो वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर इट. Which of the following scientific name of new COVID variant Omicron? So काफी न्यूज में चल रहा है every day. This is the part of the news on काफी तेजी से इंक्रीज भी हो रहा है. So one question की पॉसिबिलिटी है एंड सम अदर डिटेल्स मैं फिर से रिवाइज करूंगा. एंड इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है. डे टू डे जो हमारा करंट अफेयर्स होता है, फिर से यहाँ पे भी जो वीकली देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट रिमेंबर B.1.7, B.1526 and B.621 and B.1.529. So what is the scientific name of Omicron? जिसको WHO ने ये नाम दिया है. So just remember right answer is a B.1.529. and see the some additional information. This variant is discovered in South Africa, and its scientific name and alphabetical name is NU, and this name is given by the WHO. and Indian variant जो है डेल्टा एंड कापा. ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं एवरीडे आप लोगों को इससे रिलेट करके अपडेट करते रहता हूँ जब भी ओमिक्रॉन से रिलेट करके काफी न्यूज रहता है. सो जस्ट रिमेंबर, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन इज Who is current chairperson of the SEBI? So UK Sinha, Ajay Tyagi, TS Vijayan, AK Mathur. So because SEBI से रिलेट करके काफी कुछ न्यूज में चल रहा था, so that's why this news is related. SEBI is important for you to know कि SEBI क्या है, कभी फॉर्म हुआ था. तो एक यहाँ पे static oriented questions है. So basically right answer is Ajay Tyagi is a chairperson of the SEBI, and SEBI was founded in 1988, and its headquarter is in Mumbai, and Ajay Tyagi is the chairman. What is the main work of the SEBI? To monitor the activity of the stock exchange, safeguard the right of the investor, to curb the fraudulent practice by the maintaining the balance between the statutory regulations and self-regulation, and to define the code of the conduct for the broker, underwriters and the intermediator. So basically जो शेयर मार्केट के regulations and उसकी monitoring का
रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेबी का, ओके, एंड इट्स फुल फॉर्म इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जस्ट रिमेंबर, ये सब सारे स्टैटिक इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ सी द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लार्जेस्ट बॉर्डर विद द म्यांमार, बिकॉज अभी रिसेंटली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हर्षवर्धन श्रृंगला विजिट किए थे, उसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन मैंने सिंपल सा फॉर्म किया है कि कौन सा इंडिया की स्टेट है जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट? सो राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। एंड सी द some important information. So Arunachal Pradesh share the 520 kilometer border with the Myanmar, while Nagaland share the 215 kilometer border with this country. So remember रखो, एक सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, and some other information related to country and capital currency point of view. So Myanmar Burma, capital नेपियादे, करेंसी म्यांमार क्यात इसको बोलते हैं, ओके। सो क्यात रिमेंबर्स रखो म्यांमार का करेंसी है, and here in the picture you can see where is the Myanmar. Okay guys, so that's it. Important 15 question from the last week of December month. So guys, practice करो, once and twice revise करो, जो भी additional informations मैंने बताया उसको आप remembers रखो, and daily Monday to Friday हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आप वहां पे ज्वाइन हो, वहां पे बहुत इन डिटेल्स डिस्कशन होता है। 12 PM को एवरीडे 12 PM को वहां पे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक जीके। उस सेशन को आप डेफिनेटली ज्वाइन करो, हाईली बेनिफिशियल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके गाइस, सो इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन आस्क एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।